ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مصطفیٰ چینل راج محل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ثانی کتاب النکاح باب و عشرت النساء صفحہ نمبر 283۔ اللہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای النساء خیر فقال علیہ السلام التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ اللہ کے رسول سب سے اچھی بیوی کون ہے، سب سے بہتر بیوی کون ہے، سب سے نیک بیوی کون ہے، سب سے شاندار بیوی کون ہے، اللہ کے نزدیک جنتی بیوی کون ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا وہ بیوی کہ جس کا شوہر اسے دیکھتے ہی خوش ہو جائے، جس کا شوہر اس کے چہرہ کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ دوسرا نمبر وہ بیوی جو شوہر کے حکم کو بجا لائے، وہ بیوی جو شوہر کے حکم کو بجا لائے۔ تیسرے نمبر پر وہ بیوی کہ اپنے شوہر کی مال، اپنے شوہر کے مال میں اور اپنی ذات میں ان چیزوں میں شوہر کی مخالفت نہ کرے جو اس کے شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ بتائیے اجازت ہے؟ جب بولو اجازت ہے۔ پھر سے سنیے، نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے اچھی بیوی کون ہے، سب سے بہتر بیوی ای النساء خیر، سب سے بہتر عورت کون، بیوی کون؟ تو نبی نے فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر پہنچے تو اس کا چہرہ اتنا مسکرائے، اتنا شاداں رہے، اتنا شاداب رہے کہ شوہر کی ساری محنت دور ہو جائے اور ساری تھکان اس کے چہرے کو دیکھتے ہی دور ہو جائے اور شوہر اپنا سارا غم، ساری پریشانی بھول جائے۔ بیوی ایسی ہو کہ شوہر گھر پہنچتے ہی اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ دوسرا نمبر ادھر دیکھو، نبی فرماتے ہیں کہ جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو شوہر اسے انسونی نہ کرے، فوراً بجا لائے۔ تیسرا نمبر عورت اپنے شوہر کی کسی بھی چیز میں مخالفت نہ کرے۔ اگر شوہر اس کی ذات میں کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو شوہر کی بات مانے، اس پر عمل کرے۔ اور اگر مال شوہر نے دیا خرچ کرنے کے لیے، یہ لو پیسہ 1 لاکھ خرچ کرو، اسکول کی فیس جمع کرو، بچے کو اچھا کپڑا پہناؤ، تو اس میں خیانت نہ کرے، اس میں خیانت نہ کرے، نہ اپنی ذات میں نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ یہ ہے نیک بیوی کی پہچان۔ شوہر نے اگر 1 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ اسکول فیس دینی ہے، تم کو بچے کے ٹیوشن کی فیس جمع کرنی ہے، تم کو بچے کو یہ کام کرنا ہے، تو بیوی کو یہ اختیار نہیں کہ بیوی مارکیٹ میں جا کر اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ناراض ہوتا ہے اس عورت سے کہ جو شوہر کو ناپسند ہو شوہر کی مخالفت کرے۔ کئی حدیث سن چکے، زور سے بولو 3۔ اگر اجازت دیجئے تو اور سے سنو مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف کتاب النکاح جلد نمبر 2 باب و عشرت النساء صفحہ نمبر 281، زور سے بولو صفحہ نمبر 281۔ اللہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد
लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुदा ले अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा ले ज़ौजिहा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि औरतें शौहर को सजदा करे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, ऐ औरतों की जमात, हमारी प्यारी मां बहन, मेरी प्यारी मां बहन, नबी ने क्या कहा कि अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि हर औरत अपने शौहर को सजदा करे। अब आप बताओ शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है, लेकिन आज शौहर को तुम बोलो थोड़ी थोड़ी सी बात पर ताना देती हो। अपने शौहर की कदर करो। खून पसीना बहाकर गर्मी के मौसम में ठंडी में कांपते हुए तुम्हारा शौहर बाहर जाता है बच्चों को छोड़कर, तुमको छोड़कर, तुम्हारे लिए अच्छा खाने का इंतजाम करता है, अच्छे खाने का इंतजाम करता है, अच्छे कपड़े का इंतजाम करता है। शौहर खून पसीना बहाकर तुमको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। अपने शौहर की कदर करो। नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि औरतें अपने शौहर को सजदा करे। इधर देखिए, अभी तो आपने एक हदीस सुनी, बड़ी शानदार हदीस और भी सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुल निकाह बाबो इशरतिन निसा सफा नंबर 281। अल्लाह अल्लाह अन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह अन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िल फदखलतिल जन्नह। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस शौहर का इंतकाल इस हाल में हुआ, जिस शौहर का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उसको चाहता था, उसका शौहर उससे प्यार करता था, उसका शौहर उससे राजी था। नबी फरमाते हैं जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि शौहर प्यार करता था, शौहर उसे चाहता था, शौहर उससे खुश था, शौहर उससे राजी था, तो याद रखो वो औरत जन्नती है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो। जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ, इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे राजी था, खुश था, मोहब्बत करता था, तो नबी फरमाते हैं उस औरत के लिए जन्नत की बशारत है, वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। ये है शौहर का मकाम, शौहर खुश। सैयदना फारूक आजम की बारगाह में एक चोर पहुंचा। कौन पहुंचा, जोर से बोलो। इधर देखिए, एक चोर को पकड़ के लाया गया तो फारूक आजम ने फरमाया इस चोर का हाथ काट दिया जाए। क्या कहा जाए? सबूत शरई के बाद फारूक आजम ने चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया। गौर से सुनिए, चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया। जैसे हाथ काटने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा तो चोर कहने लगा, हुजूर मेरी गलती माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, ए हुजूर मेरी गलती माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने पहली बार चोरी की है। तो फारूक आजम ने क्या कहा, जवाब सुनिए। फारूक आजम ने कहा, ऐ चोर तू झूठा है, तू मक्कार है, तू ढोंगी है, ढोंगी, तू झूठ बोल रहा है, तूने एक मर्तबा चोरी नहीं की,
सैकड़ों बार चोरी की है। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, वो किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता। वो किसी भी बोलो पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है। जब होश में नहीं आता, जब उसका गुनाह सर के ऊपर बढ़ जाता है, जब गुनाहों में डूबने लगता है, तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी फिर उस वक्त बड़ी सख्त हो जाती है, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। एक वाकया और सुनिए, बड़ा शानदार, फिर हदीस सुनाऊंगा। सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। बहुत शानदार वाकया, ध्यान से सुनिए। दरिया के किनारे खड़े थे, अचानक एक जहरीला खतरनाक बिच्छू, खतरनाक बिच्छू देखा के सामने आ रहा है। आपने जैसे बिच्छू को देखा तो रास्ता छोड़ दिया, बिच्छू आगे बढ़ा। आपने क्या देखा कि बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। अचानक दरिया से एक छोटा सा मेढक खुश्की पर पहुंचा, किनारे में पहुंचा। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक उसको पानी में लेकर छलांग लगा दिया और लेकर जाने लगा, और दरिया उस पार ले जाकर बिच्छू को छोड़ा। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं कि जैसे मैंने बिच्छू और मेढक की ये कहानी देखी और ये मंजर देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। अल्लाह की बारगाह में मैंने कहा, परवरदिगार, ये बिच्छू और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? ये अल्लाह, ये बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा, मेढक ने पीठ पे बैठाया, बिच्छू को उस पार छोड़ा, आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आपने अचानक देखा ये बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। अचानक उस दरख्त की तरफ आपने देखा एक जवान लड़का बेहोश पेड़ के नीचे चित पड़ा हुआ है, चित पड़ा हुआ है, और उसके सीने पर एक खतरनाक जहरीला सांप बैठा हुआ है। अचानक वो सांप उसे डसने वाला था, ये बिच्छू पीछे से गया और उस सांप को इतना इधर देखिए, इतनी तेजी से डंक मारा कि सांप 1 मिनट में बोलो लोटपोट होने लगा, मर गया। सांप तो मर गया, उसकी जान बच गई। बिच्छू वहां से वापिस आया दरिया के किनारे, फिर मेढक ने पीठ पर बैठाया और बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ा। यह मंजर जब जुन्नून मिस्री ने देखा तो सजदे में गिर गए। कहा, ये अल्लाह, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा दोस्त है। ये अल्लाह, तूने सांप को बिच्छू के जरिए मरवा दिया और तूने उस जवान की जान बचा ली, लगता है ये तेरा महबूब बंदा है। जरा मैं आगे बढ़कर उसकी जियारत करूं। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे जवान के करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू महसूस किया, आप पीछे हटे और अल्लाह ताला से चीख मार कर कहने लगे, परवरदिगार, तूने एक शराबी की जान इस तरह बचाई, ये अल्लाह, उसको तो मरने देना चाहिए। ये अल्लाह, वो शराबी था, ये अल्लाह, वो तेरा नाफरमान था। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम करीम है, तुम्हारा रब अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, तुम्हारा रब तुम्हारे अपने बंदों को उसके मां बाप से भी ज्यादा चाहता है, उसकी आलो औलाद से भी ज्यादा चाहता है, अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, देखना,
जब इसको होश आएगा तो ये जरूर तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, हजरत जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ। जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया, पूरा वाकया उसको बताया। जैसे वाकया सुना, चीख मारकर रोने लगा, कहने लगा मेरे महबूब, मेरे परवरदिगार, ऐ रहीम करीम बादशाह, मेरे गुनाह बख्श दे। आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं, ये अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब एक शराबी पर तूने इस कदर करम किया, काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना करम होगा। काश मैं तेरा फरमा बरदार बन जाऊं तो कितना करम होगा। ये अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। जुन्नून मिस्री को इल्हाम हुआ, उनको खबर दे दो और खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया है और आज से उनको अपना दोस्त भी बना लिया है। ये है अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाले की शान। गलती हो जाए तो तौबा करो, बीवी का हक अदा करो, मां का हक अदा करो, मां बाप की खिदमतें करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अब इजाजत दो